Let me welcome my dear students. Today we are going to discuss here the verb. So before I start my discussion on verb, let me recall you what we have discussed earlier. We have discussed the noun, means noun is the name of a person, place, thing, quality, activity, concept, and condition. Then we have discussed that there are 7 types of noun. The first one is the common noun, proper noun, abstract noun, concrete noun, general noun, and specific noun, and the last one is collective noun. Then we have discussed what is pronoun. So we can say that a pronoun is a word that can replace a noun in a sentence. जैसा कि हमारे पास था एग्जाम्पल में ही शी इट दे यू एट्सेट्रा. So what are the types of a pronoun? There are 10 types of pronoun that are personal pronoun, interrogative pronoun, indefinite pronoun, relative pronoun, and demonstrative pronoun, possessive pronoun, reflexive pronoun, intensive pronoun, reciprocal pronoun, and the last one is distributive pronoun. Now we are going to discuss here what is a verb. So my dear students, let's discuss here the definition of a verb. We can say that it includes action words, or we can say that action or doing words are known as verb. For example, हम इसमें बात करते हैं ही राइट्स अ लेटर. यहाँ राइट्स हमारे पास जो एक्शन वर्ब है या डूइंग है, जो ऐसा काम हो रहा है, दैट इज राइटिंग. तो यहाँ राइट्स जो है हमारे पास जो लेटर लिखा जा रहा है, दैट इज कॉल्ड वर्ब. देन शी इज अ डॉक्टर. हियर वी कैन से दैट इज, यहाँ इज जो हमें शो कर रहा है, दैट इज अ वर्ब. So we can say that a verb is divided into 2 types, that is finite and the second one is non-finite verb. So what is a finite verb? We can simply say that a finite verb is a verb that changes its form according to the tense. हमारे टेंस के अकॉर्डिंग जो भी चेंज हो रहा होता है एक वर्ब में, दैट इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब. जैसा कि आई राइट अ लेटर, यहाँ आई राइट अ लेटर, खत लिखा जा रहा है, राइट चेंज हुआ, राइट सेम है लेकिन उसकी कैटेगरीज या फिर हम उसे कहें कि वो अपनी फॉर्म चेंज करता जा रहा है. ही के साथ वही राइट्स बन जाता है अ लेटर. देन आई एम राइटिंग अ लेटर. सो यहाँ अगेन टेंस के अकॉर्डिंग हमारे पास फाइनाइट जो वर्ब है वो चेंज होता जाता है, अपनी फॉर्म चेंज करता जाता है. So what are the types of finite verbs? There are 3 types of finite verbs. The first one is the principal verb, then the second one is linking verb, and the third one is the auxiliary verb. The first is principal verb. So a principal verb is a verb that provides information and is used to express action. यहाँ वो हमें information के साथ साथ अपने action भी express कर रहा होता है. So he gave me a book. देखिए यहाँ गेव एक परफॉर्म हो रहा है, दिया जा रहा है, मी अ बुक. तो वो हमारे पास 2 चीज़ें यहाँ शो हो रही हैं. एक तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे, कुछ दिया जा रहा है, साथ साथ एक्सप्रेस कर रहा है किसी एक्शन को. सो द नेक्स्ट वन इज ही टोल्ड मी अ स्टोरी. देखिए यहाँ टोल्ड अगेन सेम एक्शन परफॉर्म कर रहा है. सो ही टोल्ड मी अ स्टोरी इज प्रिंसिपल वर्ब. द सेकेंड वन इज द लिंकिंग वर्ब. So a linking verb connects the subject of a sentence to a word. So a complement of a subject or a phrase and gives information about the subject structure. So linking verb is also called the coupler verb. For example, हम इसको एग्जाम्पल में लेते हैं. दे आर स्टूडेंट्स. वो दे के साथ हमें आर मीन्स यहाँ पर हमें लिंक कर रहा है. ही लुक्स, वो देखता है, ही लुक्स हैप्पी, वो हैप्पी हमें नजर आ रहा है. So these are called the linking verb. And now we are going to discuss here the auxiliary verbs. So let me discuss here what is auxiliary verbs. So auxiliary verbs are the verbs that are used to help the main verb of the sentence to express the meaning in accordance to the tense or mood. So they are also called helping verbs. हम इसको helping verb भी कहते हैं. तो auxiliary verbs या helping verbs ये दोनों सेम होती हैं. We are going to discuss here the types of auxiliary verbs. मीन्स ये फर्दर दो verbs में हम कहेंगे डिवाइड हो रही है. The first one is the primary verb and the second one is the modal verb. So what are primary verbs? So they are divided into 3 main types. be, have and do. be के साथ हमारे पास is
एम, आर, वॉज वर आता है, हैव के साथ हैज़, हैव, हैड तीनों आते हैं, डू के साथ डू, डज, डिड ये तीनों आते हैं. सो द विंडो इज बीइंग ओपन्ड बाय मी. तो यहाँ हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, इज बीइंग. तो हमारे पास प्राइमरी वर्ब जो है इज है. So what is modal verb? Modal verbs can means are total 10. They means हम ये 10 नहीं है, ये हैं इससे ज़्यादा, लेकिन हमने एक जो ज़्यादा फेमस वाले हैं वो ही डिस्कस कर रहे हैं. So they are can, could, would, should, must, may, might, ought, will, shall, etc. So the example is I can write. तो ये modal verb है. You can jump, modal verb. So now we are going to discuss here the non-finite verb. So the verb that is not affected by the person or the number of subject in the tense of the sentence is called non-finite verb. So sometimes it actions as a noun or a verb too. So the types of non-finite verbs means there are 3 types of non-finite verbs. The first one is the infinite verb. The second one is infinite भी कहते हैं और इसको infinitive भी कहते हैं. That is up to you, आप क्या कहना चाह रहे हैं इसको. The second one is the gerund verb and the third one is the participle verb. So now we are going to discuss one by one. The first one is the infinite or the infinitive verb. So it is verb that acts as a noun, adjective or adverb in order to express an opinion, purpose of purpose of an object or an action, means and answer the question who, what, why. These kind of words are called infinite verb. I love to sleep. अब देखिए ये आंसर किसको कर रहा है, I love. ये किससे लव हो रहा है, मीन्स what को यहाँ डिफाइन कर रहा है, to sleep. I really need to eat. I really need, हम क्या खाना चाह रहे हैं, what. So to eat मीन्स रियली नीड, ज़रूरत क्या है, टू ईट, खाने की. इफ़ वी आर गोइंग मीन्स इसको हमने फर्दर क्या है, इनफाइनाइट को हम जब एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते हैं तो द फॉलोइंग सेंटेंस मीन्स क्लैरिफाई इनफाइनाइट एज एन एडजेक्टिव. सो वी कैन, यहाँ पे एक सेंटेंस है, वी कांट प्ले अनटिल वी फाइंड ए बॉल टू थ्रो. देखिए यहाँ पर एडजेक्टिव क्या है, टू थ्रो. ये हमें क्या डिफाइन कर रहा है, ये इनफाइनेटिव वर्ब को यूज़ कर रहा है एज ए इन्फिनेटिव और इनफाइनाइट वर्ब. सो द नेक्स्ट वन इज द इनफाइनेटिव एज एन एडवर्ब. अगर हम एडवर्ब को लेते हैं तो भी इनफिनेटिव होता है. इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई इनफाइनाइट as adverb examines the following sentence. The students were excited to go on a field trip. यहाँ देखिए adverb है to go on, कहाँ जा रहे हैं, verb को define कर रहा है. तो यहाँ पर हमें infinitive को as a adverb use कर रहा है. The next one is the gerund verb. So it is a word that is formed with a very adding हम एक सिंपल हम जो फोर्थ फॉर्म होती है उसको gerund verb कहते हैं, या फिर जो फर्स्ट हमारे पास वर्ब की फॉर्म होती है उसके साथ ing या फिर ed का जब हम यहाँ पे उसको इजाफा किया जाता है तो दैट इज कॉल्ड द जेरंड वर्ब. सो और इसमें हम क्या करते हैं, नाउन को उसमें ing का इसमें हम इजाफा कर देते हैं. सो आई लाइक स्विम, स्विम एक नाउन है तो हमने क्या, स्विमिंग को ing के साथ स्विमिंग. आई लाइक राइटिंग. सो हम नाउन को भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक बोट, ही इज़ बोटिंग. सो हमने बोट को यूज़ किया ing का साथ में हमने इजाफा किया और हमारे पास क्या हुआ कि एक जेरंड वर्ब आ गया. सो व्हाट इज पार्टिसिपल वर्ब? सो इट इज़ अ वर्ड दैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ वर्ब एंड एक्ट्स एज ए वर्ब, एडजेक्टिव एंड adverbs too. So I am swimming, I am playing. So these are the participle verb. So if we are talking about the present participle, देखिए आई के साथ हम एम लगाते हुए स्विमिंग सेम रहेगी, दे आर हम स्विमिंग सेम रहेगी, ये चेंज नहीं होते. दैट इज वाई हम इसे कहते हैं ये नॉन फाइनाइट वर्ब है. सो इसकी एग्जांपल मैं बताती हूँ. प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल इज ing फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच इज यूज एज एन एडजेक्टिव. जब हम एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं तो ये हमारे पास मीन्स आई एम वर्किंग, तो ये एडजेक्टिव है लेकिन हमारे पास पार्टिसिपल है. पास्ट पार्टिसिपल में हम बात करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल इज अ वर्ड दैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ वर्ब दैट इज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. दैट इज अ ब्रोकन चेयर.
सो हमने ब्रोक को लेते हुए उसकी थर्ड फॉर्म यूज़ की, ये हमारे पास में आ जाता है, तो हमारे पास पार्टिसिपल में पास्ट पार्टिसिपल है। सो द लास्ट वन इज द परफेक्ट पार्टिसिपल। तो हमने क्या किया, इन द पार्टिसिपल वर्ब द यूज we use indicate or the indicate that one event happens before another। हैविंग के साथ हमने थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। सो ही लुक हिज ब्रेकफास्ट मीन्स ही टुक हिज ब्रेकफास्ट, ही वेंट टू स्कूल। सो हमने क्या किया, हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट ही वेंट टू स्कूल। हमने इसी सेंटेंस को दो अलग अलग थे, उनको सेम में हमने परफेक्ट में यूज़ किया। हैविंग टेकन, हैव भी किया कि उसने मीन्स कर भी लिया, रखता भी था, एंड हैविंग टेकन उसको मीन्स हम सिंपली यही कहेंगे कि अपना ब्रेकफास्ट खाने के बाद वो स्कूल चला गया। इसको हमने एक ही सेंटेंस को एक क्लियर वे में हम डिस्कस कर देते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वर्ब। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।